السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں ہوں ارباب جہانگیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے اسرائیل نے غزہ پر بموں کی بارش کر دی ہے۔ غزہ پر بری، بحری اور فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ حماس ترجمان کے مطابق اسرائیل کا 6 طرفہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر 22 روز سے جاری جنگ کی سب سے بدترین بمباری، ہر طرف بموں کی بارش، مسلسل دھماکے۔ گزشتہ روز سے جاری بدترین بمباری کی وجہ سے امدادی کارروائیاں محال، مزید ہزاروں شہادتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر اندھا دھند بری، بحری اور فضائی حملے کیے۔ حماس نے غزہ میں داخل ہونے والے اسرائیلی ٹینکوں پر الیاسین راکٹ فائر کیے، جس سے اسرائیلیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ حماس ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کو علاقے سے نکالا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے غزہ میں حماس سے لڑائی طویل اور مشکل ہوگی۔ اسرائیلی فوج غزہ کا مکمل محاصرہ کر چکی ہے۔ 229 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہر صورت حماس کی قید سے آزاد کرائیں گے۔ غزہ کے اسپتالوں میں بڑا انسانی المیہ جاری ہے۔ طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی بنا پر زخمی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ غزہ میں ہوئی شہادتوں میں بچوں کی تعداد 3,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ زخمیوں کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ فلسطین کے شہر مغربی کنارے پر بھی اسرائیل نے قیامت ڈھا دی۔ رات بھر آبادیوں پر خوفناک بمباری کی گئی۔ اندھا دھند حملوں میں 3 فلسطینیوں کی جان چلی گئی، متعدد زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں شہداء کی تعداد 113 ہو گئی۔ اسرائیل کی بربریت میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فوج نے رات بھر نابلس اور رام اللہ پر حملے کیے۔ متعدد فلسطینی نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے نابلس میں عسکر کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج نے ایک نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال میں بیت ریما میں کارروائی کی، جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ تمون کے علاقے میں بھی اسرائیلی حملے میں ایک نوجوان شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ حماس کے رہنما یحییٰ السنوار نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں اسرائیل میں قید تمام فلسطینیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حماس اس معاہدے کو فوری طور پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی عالمی برادری سے قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ ظالم اسرائیل نے غزہ میں بمباری کر کے 3,500 سے زائد بچے شہید کر دیے ہیں۔ قدموں تلے جنت رکھنے والی ماؤں کی گود میں ان کے فرشتوں کے جنازے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز دل دہلا رہی ہیں۔ غزہ میں منڈلاتی موت کے سائے میں لوگ لاشارگی کی تصویر بن گئے۔ جو کبھی شہر ہوا کرتا تھا وہاں اب بس ملبہ ہے۔ لاشوں سے چمٹی مائیں ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتے باپ، جن کے خواب بچوں کے جنازوں نے بکھیر دیے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھنے لگی ہے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایک شخص نے سرکاری عمارت سے اسرائیلی پرچم اتار پھینکا۔ عالمی برادری نے امریکہ اور اسرائیل کو غزہ کے بے گناہ انسانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دے دیا۔ استنبول، لندن، میلبرن سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیلی بمباری بند کرو، مظلوموں کا قتل عام ناقابل قبول۔ دنیا بھر میں جنگ بندی کے مطالبے میں مزید شدت آ گئی۔ لندن میں مظلوموں کے حق میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا۔ لاکھوں افراد نے احتجاجی ریلی نکالی، فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے۔ مظاہرین نے برطانوی وزیر اعظم سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سویڈن میں بھی فری فلسطین کے نعرے لگ گئے، فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپین کے شہر بلباؤ، ڈنمارک، جرمنی، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ہنگامی عرب سربراہی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیوبا کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیلی خون ریزی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں صہیونی درندگی پر دنیا سراپا احتجاج، عالمی شخصیات اسرائیل کے خلاف پھٹ پڑی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ آپریشن الاقصی طوفان کے بعد اسرائیل کا ناکام زمینی حملہ مزاحمت کی دوسری فتح ہے۔ صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن خود اسرائیل کی وسیع حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کے نئے جنگی مرحلے کے اثرات پر بات کرنے کے لیے ہنگامی عرب سربراہ
सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जवाब ज़मीनी हमले और मज़ीद कशीदगी से दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर फट पड़े। कहा कि इसराइल एक गासिब और जंगी मुजरिम है। क्या मगरब एक बार फिर सलेब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि हम अभी जिंदा हैं। फ़लस्तीन, लबनान और शाम में भी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में तेजी आ गई। हमास ने इसराइल के एटमी तनसीबात वाले शहर वेमूना को निशाना बनाया। गजा में भी इसराइल का फौजी ट्रक तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी मुतादिद हमलों में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। शाम में भी 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मशरिकी वस्ता में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का दायरा वसी होने लगा। हमास के अल-अक़साम ब्रिगेड ने इसराइल के अहम तरीन शहर देमोना पर रॉकेट दाग दिए। उत्तर गजा में हमास ने रॉकेट हमला करके ज़मीनी कार्रवाई में शरीक एक इसराइली फौजी ट्रक को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के हमले में भी इसराइली फौजी गाड़ी तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर चौकी को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। हमास ने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के अल-अबाद फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। उधर शाम में वाक़े अल-अमर ऑयल फील्ड में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बना दिया गया। अमरीकी अड्डे से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया गया। शाम के सूबे हम्स में भी अमरीकी अड्डे पर नामालूम ड्रोन्स ने बमबारी कर दी, जिसके बाद इलाके में शदीद आग लगती देखी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर देंगे आपको कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम इकोनॉमिक फेस्टिवल में पाकिस्तान में कारोबार ना बढ़ने के हवाले से मुज़ाकरे में शुरका ने कारोबार ना बढ़ने की वजह मुआशी सूरत हाल को करार दे दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान, साबिक मेंबर तवानाई मनसूबाबंदी कमीशन शाहिद सत्तार के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जो इकोनॉमिक फेस्टिवल हो रहा है, इस फेस्टिवल में पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे क्यों नहीं बढ़ते, इसके हवाले से अब से कुछ देर कबल एक मुज़ाकरा हुआ है और ये मुज़ाकरा इख्तिताम पजीर हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल हैं, ख़ास तौर पर बिजनेसेस के हवाले से काफ़ी नज़र रखते हैं, गहरी नज़र इनकी है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ रहे। जी, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हुकूमत ख़ुद बिज़नेस में है, हर किस्म के बिज़नेस में है, और पाकिस्तान में जितना भी इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो 70% से ज़्यादा गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट बिजली ख़रीदती है, गवर्नमेंट बिजली बेचती है, गवर्नमेंट बिजली बनाती है, गैस ख़रीदती है। इसी तरह ही आप जिस चीज़ में मर्ज़ी देखें। और ये जो हमारे यहाँ ये एक जो बन चुका है कि जी गवर्नमेंट ही सारा कुछ कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट ही हर चीज़ चलाएगी, वो हमने देख लिया, वो नहीं चलता। जो प्राइवेट सेक्टर्स के बिजनेसेस आते हैं या जो उनको चलने के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए बड़ा साइज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं। लोग कहते हैं जी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, मैं कहता हूँ इट इज़ अलाउइंग टू डू बिज़नेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तो बहुत बात की बात है। तो इसी तरह ही आपके यहाँ सेविंग्स नहीं है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होती, तो स्टॉक मार्केट भी नहीं चलता। स्टॉक मार्केट हमारा बहुत छोटा है और जो है भी वो उसका जो अर्निंग्स टू शेयर प्राइस रेशो है वो इतना लो है कि मेरा ख्याल दुनिया में सबसे कम है इस वक्त। इसलिए कि जब तक उसमें जान नहीं डलेगी, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, उसमें डालेंगे नहीं, तो वो बड़ा नहीं होगा। लोग क्यों नहीं डालते उसमें? इसलिए कि हमारी बेशतर आबादी इस वक्त जो है वो सतह गुर्बत से नीचे है। उनके पास खाने पीने को तो है नहीं, वो सेविंग क्या करेंगे? हुकूमत को किसी भी बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर जो बिज़नेस कर रहा है वो ख़ास तौर पर उनको भी जिस अंदाज से जो है वो उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनको भी दूर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम इकोनॉमिक फेस्टिवल के दूसरे रोज़ क्या हम टैक्स चोर हैं के मौजू पर सेशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में टैक्स वसूली और रुकावटों के हवाले से टैक्स माहिरीन का कहना है कि टैक्स निज़ाम में जिद्दत, डेटा इंटीग्रेशन, बेहतर अमल दरामद फौरी तौर पर ये बेहतर साबित हो सकता है। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर बताइएगा क्या कहा गया सेशन?
جی بالکل، آج پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اکنامکس میں مباحثات کا دوسرا روز تھا، اور کیا ہم ٹیکس چور ہیں کے حوالے سے ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ سینئر ریسرچر موجود ہیں، ڈاکٹر مشرف صاحب، سینئر صحافی موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب۔ ہم دونوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ بحیثیت قوم ہم ابھی تک اس طرح سے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر سک رہے۔ مشرف صاحب بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اس کی جو چند بڑی وجوہات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ عام پاکستانی تک یہ بات نہیں پہنچائی جا پا رہی ایفیکٹو طریقے سے کہ ٹیکس دینا ان سب کے لیے ایز اے سٹیزن ضروری ہے، اور پھر ان کے لیے اگر وہ ٹیکس دینا چاہیں تو فیئر، آنیسٹ، انٹیگریٹی والا سسٹم ہو، تاکہ ان کو یہ یقین ہو کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ قوم اور ملک کے لیے لگ رہا ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں، جن میں سب سے بڑی FBR ہے فیڈرل لیول پہ، ان کو انفورسمنٹ میں جب جو اشخاص بڑے امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جن کو دینا چاہیے، ان کے جا کے اوپر انفورس کرنا اور اس ٹیکس کے لاء کو لاگو کرنا، ان سے ٹیکس وصول کرنا، اس کے سلسلے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ٹیکس کی کلیکشن کم ہوتی ہے۔ جی بالکل، ٹیکس قوانین کے انفورسمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ سید مہتاب حیدر، معروف صحافی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے تھوڑا سا بریفلی جانیں گے کہ کون سے ایسے اسٹیپ، جیسے کہ آپ نے ڈائریکٹری کا ذکر کیا، اس طرح کے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے ہم اس نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 126 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ ان کو اگر انٹیگریٹ کر دیا جائے اور ان کے ڈیٹا کو انٹیگریٹ کر دیا جائے تو پھر FBR کو ٹیکس وصولی میں سہولت ہوگی۔ اس ٹائم 126 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اس میں کچھ لاز اینڈ پروسیجرز کو لانے کے لیے اور سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک FBR کے لیے چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ کیسے وہ انفارمیشن کو ٹیکسیبلٹی کے اندر کنورٹ کریں۔ یہ ڈیٹا جو ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے، اس کو انٹیگریٹ کریں، انٹیگریٹ کر کے FBR اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرے تو ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، مہتاب حیدر صاحب کا کہنا تھا کہ نہ صرف ریسرچ کی ضرورت ہے بلکہ ڈیٹا کے انٹیگریشن کی بھی کافی ضرورت ہے۔ جب یہ انٹیگریشن ہوگی تب جا کے عوام میں ٹیکس کا شعور بڑھے گا، عوام کے ٹیکس کی استطاعت بڑھے گی اور ٹیکس کلیکشن کا نظام مزید بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے انور عباس، آپ کا بہت شکریہ۔ پاک افواج، NLC، FC اور ریلوے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ سبی ہرنائی ریلوے سیکشن کو 18 سال بعد بحال کر دیا گیا۔ 2006 میں سیکشن کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور ہرنائی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، سبی ہرنائی ریلوے سیکشن کو 18 سال بعد بحال کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان نے سیکشن کا افتتاح کیا، کہا کہ سیکشن کی بحالی سے دونوں اضلاع کے عوام کی معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح ہرنائی پیسنجر ٹرین کا آج ہم نے افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ جلد آپ کے لیے ہرنائی کے لیے ہمارے فیڈرل منسٹر اشرف تارڑ صاحب نے ہماری گزارش پہ مال بردار ٹرین چلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بولان میل کے لیے ہم نے گزارش کی تھی، بولان میل اور اکبر بگٹی ایکسپریس کے لیے۔ بولان میل انشاءاللہ 25 دسمبر کو وہ بھی سبی سے سٹارٹ ہو جائے گی، کوئٹہ اور سبی بلوچستان کے لوگوں کے لیے۔ نگراں وزیر ریلوے نے ٹرین سروس کی بحالی میں کردار ادا کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پہ میں جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اگرچہ کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ریلوے کے تحت تھا، لیکن NLC کی پارٹیسپیشن رہی، FC کی ہمیں پروٹیکشن حاصل رہی، ہمیں لوکل ایڈمنسٹریشن کا تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے آج یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے رول کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور اس کی ریکگنیشن بھی ہم پراپرلی وہ کریں گے ایک خاص موقع کے اوپر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے صوبے میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، عوام کو سستا اور محفوظ ترین سفر میسر ہوگا۔ یہ بہت احسن اقدام ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، جو ہماری نیڈز ہیں، ہمارے پاس پیسنجر زیادہ ہیں اور ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں نہیں، تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ایک تو فیسلٹی سٹیزنس کو مل جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت آرام دہ سفر ہے۔ یہ سیکشن نہ صرف سبی بلکہ ہرنائی اور بلوچستان میں معاشی حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں یوسف، بول پاکستان۔
बलूचिस्तान सिब्बी। MQM पाकिस्तान मलीर और औरंगी के बाद लियाकत आबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत आबदी से, जो इस वक्त जलसा गाह में ही मौजूद हैं। वजाहत बताइएगा, कितने बजे जलसे का आगाज होगा? तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर जलसे की तैयारियां आखिरी मराइल में पहुंच चुकी हैं। जलसा लियाकताबाद के स्टूडेंट ग्राउंड में किया जा रहा है, जहां पे हज़ारों की तादाद में कुर्सियां नस्ब कर दी गई हैं, स्टेज सजा दिया गया है। मराइल जलसे के जो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है जलसा। बताया जा रहा है MQM पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से कि 8 बजे के वक्त जलसे का आगाज़ किया जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लियाकताबाद की आवाम शिरकत करेगी। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बताना है कि कराची के MQM के 29 टाउन हैं, जिसमें 3 टाउनों के अंदर जलसा किया जा चुका है। उसके बाद 26 टाउन में जलसा किया जाएगा। आज के जलसे में 8 बजे जलसे का आगाज होगा, जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की क़यादत इसमें खिताब करेगी, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार अगले लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। जी, खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो वर्ल्ड कप के अहम तरीन लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से जेर कर लिया। ब्लैक कैप्स 389 रन के ताक़ुब में 383 रन बना सके। रविंदर की 116 रन की इनिंग भी कीवीज को फतह न दिलवा सकी। मुकाबला कैसे किया जाता है, पहाड़ जैसे हदफ का ताक़ुब भी किसी सूरत हार न मानने का जज्बा न्यूजीलैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड को दिखा दिया। 389 रन का हदफ देने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम को दांतों तले पसीना आ गया। फातेह कौन होगा, आखिरी बॉल तक किसी को नहीं पता था। रन बनाने वाले कीवी बैटर रविंद्र का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए जिमी नेशम ने हरीफ बॉलर्स को बल्ले की धार पर रखा। मैच के आखिरी ओवर्स में 39 बॉल्स पर 58 रन बनाकर कैंगरूज की हमैयां उड़ा दी। नेशम का आउट होना कैंगरूज की जीत का पयाम्बर साबित हुआ। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बारी में 388 रन स्कोर किए। ट्रेविस हेड ने 109 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 81 रन की इनिंग्स खेली। मैक्सवेल 41, कप्तान पैट किम्स 37, जोश इंग्लिश 38 और मिचेल मार्श ने 36 रन का हिस्सा दिया। ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातेह टीम के सेंचुरी मेकर ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कलकत्ता पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। खबर आपको देंगे कराची के इलाके सऊदाबाद से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान काफी अरसे से सुबह सवेरे शहरियों से लूट मार करते थे। कराची के सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए। सऊदाबाद के इलाके शादमान टाउन में सुबह सवेरे डाकुओं का ग्रुप लूट मार में मसरूफ था कि पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 32 मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। SSP कोरंगी हसन सरदार ने मीडिया को बताया कि लुटेरों का 4 रुकनी ये ग्रुप काफी अरसे से सुबह सवेरे शहरियों से लूट मार करता था। पुलिस मौके पे पहुंची है और इनकी आपस में मुठभेड़ हुई है, आपस में मुकाबला हुआ है। डाकुओं ने पुलिस पे फायरिंग की है, जिस पे जवाबी फायरिंग में 4 डाकू मौका पे हलाक हुए हैं। खबर देंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला किया। यार्ड टोल प्लाजा के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गए। शहीद के जस्ते खाकी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता अतवार में नजरअंदाज होने वाले गवादर के लिए आर्मी चीफ ने कई बड़े मंसूबों का ऐलान कर दिया। इनमें तवानाई, तालीम, माहिगी, सेहत, खेलों से मुतालिक शोबे शामिल हैं। पाक फौज मुल्क भर के तमाम अहम इलाकों की निशानदही करके आवाम की सहूलियात के लिए दिन रात कोशां है। 42 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द में शामिल अफराद ने सानह 9 मई के हवाले से गहरे रंज और कर्ब का इजहार किया। उनका कहना था कि 9 मई के शर्मनाक वाक़यात से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद आपारा चौक से गजा मार्च का आगाज़ हो गया है। मार्च शुरा के क्या मुतालबात हैं, मजीद जानेंगे वहाँ मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या मुतालबात कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा मार्च का एहतमाम किया गया। गजा मार्च अपारा चौक से शुरू होकर एम्बेसी रोड पर पहुंच चुका है बड़ी तादाद में, जिसमें खवातीन, बच्चे, जड़वा शहरों से शहरियों की बड़ी तादाद शामिल है। मार्च शुरा ने हाथों में झंडे उठाए हुए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि फलस्तीन पर और गजा पर जो बच्चों पर, खवातीन पर बमबारी की जा रही है, अक़वाम आलम इस सिलसिले को फिलफौर बंद करवाए। इस वक्त बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे भी इस मार्च में शरीक है। ये पिंडाल में पहुंच चुके हैं, पिंडाल सजा दी गए। अब्दुल वाहिद आपको दिखा तो कैदीन इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है और बड़ी तादाद में जो शुरा हैं वो भी इस एम्बेसी रोड के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त खिताब का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अक़वाम आलम से मुतालबा किया जा रहा है कि गजा पर और खासकर बच्चों, खवातीन, अस्पतालों पर ये बमबारी का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ललिता खान, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जनरल अस्पताल और मियो अस्पताल का दौरा किया और तामीराती सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों के तमाम फ्लोर्स का मुआयना भी किया और तामीराती कामों के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों में 250 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। अपग्रेडेशन के काम को जितनी जल्दी मुमकिन हो मुकम्मल किया जाए। जमहूरिया तुर्किया के क़याम को 100 साल मुकम्मल हो गए। 100वीं सालगिरह के मौके पर मुसल्लह अफवाज के हवाबाजों ने आसमान पर 100 लिख। लाहौर की सकाफत को उजागर करने के लिए लाहौर लॉर फेस्टिवल आज दूसरे रोज भी जारी है। 16 रोज़ा फेस्टिवल के दूसरे रोज महफिल समा, आर्ट एंड कल्चर की मुख्तलिफ तकरीबात भी की गई, जबकि लाहौर की सकाफत को उजागर करने के लिए लाहौर आज दूसरे रोज भी जारी है। 16 रोज़ा फेस्टिवल के दूसरे रोज महफिल समा, आर्ट एंड कल्चर की मुख्तलिफ तकरीबात समेत थिएटर प्ले भी पेश किया जाएगा। मजीद भी इस हवाले से बताएंगे। अभी यहाँ आपको बताएं कि सखर IBA में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को सिंध के शोरा कराम कामयाब करार पा रहे हैं, जबकि सिंध के मारूफ शायर अदल सोमरो का कहना है कि इस तरह के इवेंट मजीद होने चाहिए। इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं। यहाँ पर बात होगी शायरी की, उर्दू की, सिंध में उर्दू अदब के हवाले से भी होगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये सेशंस होंगे। तमाम दिन ये सेशंस जो हैं वो जारी रहेंगे, जिसमें पूरे मुल्क से जो है वो शोरा कराम, अदीब, माहिर तालीम, तमाम लोग जो है शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध की बड़ी शख्सियत मारूफ शायर अदल सोमरो साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताएं किस हद तक ये कामयाब है और क्या सीखने को मिला है यहाँ पर तुलबा को, यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं? इस फेस्टिवल की सबसे खुसूसियत यही है कि ये इसमें नौजवानों का हिस्सा बहुत है। आप पार्टिसिपेंट्स देखें तो तकरीबन 80% जो है नौजवान हैं और वो नौजवान जो इल्म, अदब और तारीख, शायरी से दिलचस्पी रखते हैं और उन शोरा को और अदीबों को जिन्होंने पढ़ा था, उन्होंने रूबरू देखा, उनसे गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इवेंट था। प्रोग्राम हुआ है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का, इससे बड़ा प्रोग्राम इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ और यहाँ के तुलबा और तालबात और यहाँ के लोगों ने जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और मुसलसल इस फेस्टिवल से ये तमाम चीज़ें सीख रहे हैं। और हाथ का कमाल पायदारी में बेमिसाल और खूबसूरती में लाजवाब। लिए चलते हैं आपको जामपुर, जहां महारत ने जदीद मशीनों को मात दे दी। हाथ से बने खुसे ऐसे शानदार कि देखने वाला देखता रह जाए। देखते हैं अहमद नवाज की रिपोर्ट। बेरंग चमड़े पर मेहनत का रंग चढ़ाना, औजारों से ज़रब लगाना और शाहकार तैयार। जामपुर के कारीगर साल से ये काम अंजाम दे रहे हैं। रंगों की जल तरंग से भरपूर खुस्से उस महारत का मुंह बोलता सबूत है जो मशीन की मोहताज नहीं। आम खुस्से के मुकाबले में ज्यादा पायदार, पैरों के लिए आरामदेह और जेब पर भी भारी नहीं। यही वजह है कि दूर दराज से लोग जामपुर आते हैं और हाथ से बने खुस्से ले जाते हैं। दुकान थे लेकिन खुस्से दे रेट वध गए वाला भी सब खुस्सा गिंदे हुए क्योंकि खुस्सा मजबूत पहनेगा, ये पायदार चीज है। जामपुर का रिवायती खुस्सा मर्दों और खवातीन में यकसा मकबूल है। यही वजह है कि शादी और खुशी के मौके
खुस्से के बगैर अधूरे तस्वुर किए जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो लाड़काना के शहरी भी महंगाई के बायस परेशान हैं। सब्जियां और फल सरकारी निर्खों से तजावुज रेट्स पर फरोख्त किए जा रहे हैं। अनार 300 रुपए, अंगूर 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान से। जी शहजाद। बिल्कुल महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लाड़काना में अशिया खुर्दोनोश, सब्जियों और फ्रूट्स की कीमतें जो है वो इस वक्त भी आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे साथ जो है वो एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। कोई चीज सस्ती देने के लिए आलू जो अभी इस टाइम 200 रुपए किलो को बिक रहा है, टमाटर है 250 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज है 100 रुपए किलो बिक रही है, केले 100 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, अनार है 250-300 रुपए किलो बिक रहा है, सेब 200-250 रुपए किलो बिक रहा है। बंदा कमाने वाला 500 रुपया, ये अशिया कहाँ से लेके जाए? शहरी जो है वो अपनी जो है वो इजहार कर रहे हैं बेबसी का, और ये बेबसी का आलम जो है वो थमने का नाम ही नहीं। अब कुछ बदलते मौसम की बात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी कदम जमाने लगी है। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। कराची में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। शहरियों को सुबह शाम की खुनकी भली लगने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान है। नवंबर की आमद मुल्क भर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। कराची में गुलाबी जाड़ा आ गया। रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत गिरने लगा। शहरियों को सुबह शाम की खुनकी भली लगने लगी। सिंध के जुनूबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी गलियात और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। लाई इलाकों में बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। उड़न कार, जदीद जीप और स्पोर्ट्स कार्स। जापान में 4 साल बाद जदीद गाड़ियों का मेला सज गया। जापान मोबिलिटी शो में इलेक्ट्रिक कार्स शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। शुरका ने गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। सर्दी की आमद का पैगाम। चीन में दरख्तों को खूबसूरत ऊनी मलबूसात से सजा दिया गया। सड़क पर बुलबुलों की बारिश, बच्चे झूम उठे, खूब एंजॉय किया। मुश्किल हालात ने 2 भाइयों को जुर्म की राह में धकेल दिया। दोनों जराइम की दुनिया में किस हद तक आगे जाएंगे? हॉलीवुड फिल्म फाइनेस्ट काइंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज होगी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।